So you should be able to see the screen right now. Okay, so इस पे we were doing this derivatives chapter. So इस पे हम लोग ने I think we had finished with 1.3 I think almost, or we were close to finishing 1.3. ऑनलाइन लेक्चर में I think 1.3 पूरा नहीं हुआ था. Just check what was the last question done for 1.3. Did we finish this? नहीं शायद हो गया है फिनिश. ओके चलो अच्छा है. तो फिर अभी हम लोग इसका नेक्स्ट जो है 1.4 स्टार्ट करते हैं. So 1.4 जो है that is based on parametric differentiation. Okay, so parametric functions का डेरिवेटिव कैसे होता है. Everyone जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, just check whether we had finished with 1.3 completely, because we are about to start with 1.4. Okay, so ऐसे नहीं होना चाहिए कि like maybe you have attended it offline और वहाँ पे आपने देखा कि 1.3 हो गया है. So okay, 1.3 is done. 1.4 में से I'm not sure whether we had done any questions. Did we do the theory part of 1.4 like parametric function क्या होता है and all that? नहीं, ठीक है. तो हम लोग पहले वो स्टार्ट करते हैं. Let us do the parametric. So we are trying to learn the derivative. Okay. So differentiation of parametric functions. अच्छा यहाँ पे एक सेकंड ना. I think the phone is not on. Laptop was not on charging. थोड़ा सा अलग बिहेव करता है. Anyway, so parametric differentiation या differentiation of parametric functions. So first of all, what are parametric functions? पहला तो क्वेश्चन ये है कि parametric functions होता ही क्या है, तब ना हम लोग उसका डेरिवेटिव सीखेंगे भाई. Okay, so differentiation of parametric functions. So let us first understand what is derivative of parametric functions. पहले बात parametric functions समझते हैं अच्छे से, and then we will understand how to find their derivative. Okay, so till now what we have seen, हमने ऐसा क्वेश्चंस किया था. ठीक है, so अभी तक का क्या स्टोरी है अपना. तो अभी तक का कहानी में हमको पता है कि we have learned about explicit function. बराबर. तो हमने explicit functions के बारे में सीखा. Explicit functions क्या होता है? y equal to some function will be given in terms of x. So it is y equal to x raised to 4. Okay, so this is a function y equal to x raised to 4. तो इसमें क्या होता है कि ये जो x है, that is called as the independent variable. Okay, so this is called the independent variable. Obviously y x के ऊपर depend करता है. As we substitute the values of x, we will get the values of y. So independent variable है और y जो है उसको हम लोग बोलते हैं it is the dependent variable. Okay, so independent variable, dependent variable. ऐसा होता था for an explicit function. Okay, तो जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे वैसे हमको y का वैल्यूज मिलेगा. So x is the independent variable, y is the dependent variable in such explicit function type of question. ठीक है, अब हम लोग implicit का देखते हैं. ठीक है, so when we are discussing implicit functions, say for example if I take something like x square plus y square equal to x into y, something like this. Okay, so this is an implicit function. You can say this is an implicit function. तो इसमें जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, obviously we are again trying to discuss the function. Okay,
तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट x टू बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो ट्रीट x एज इंडिपेंडेंट. तो x के लिए हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन हमको y का वैल्यूज मिलेगा. सो ट्रीट x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये जो y का वैल्यूज होगा, ओके, जितने भी y के वैल्यूज है ऑब्वियसली, all these will be then becoming the dependent variable. Okay. So ये सब कुछ थियरीज है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया था, बट आप समझ सकते हो x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने से, तब y का वैल्यू मिलता है. तो ऑब्वियसली x इंडिपेंडेंट है और y x के ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज द रीजन वी आर नेमिंग इट दिस वे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, सो एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट हो गया. नेक्स्ट वी वांट टू लर्न अबाउट पैरामेट्रिक फंक्शंस. सो अब अपना क्वेश्चन है अबाउट पैरामेट्रिक फंक्शंस. ओके, सो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, द फंक्शंस आर समवॉट डिफाइंड, x and y both are defined in terms of some parameter. Okay, so suppose say like I name it x equal to 2 cos theta, y is equal to 2 sin theta. अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, so ये जो है x and y both are depending upon theta. Okay, तो इसमें x and y they depend. Okay, so actually they are dependent and they are depending on what? They are depending upon one parameter theta. तो पैरामीटर क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके ऊपर x एंड y दोनों ही डिपेंडेंट रहते हैं. सो x जनरली इंडिपेंडेंट होता है, y जनरली डिपेंडेंट होता है, लेकिन पैरामीटर के टाइम पे x एंड y दोनों ही डिपेंड करता है ऑन द पैरामीटर. जैसे जैसे पैरामीटर चेंज होगा आपको x और y दोनों का ही वैल्यूज आपको साइड बाय साइड मिलता रहेगा. ठीक है, so for any given value of the parameter we will get the values of x and y simultaneously. ठीक है, so यहाँ पे for values of theta which is the parameter, okay, we will get the values of x and y simultaneously. ओके, मतलब x और y दोनों साथ में आपको मिलता रहेगा. एक सपोज t का वैल्यू 1 के लिए लिखा, फिर t का वैल्यू 1.1, t का वैल्यू 1.2, ऐसा अलग अलग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, या थीटा के लिए आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको x और y करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको मिलता रहेगा. सो पैरामीटर एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर x एंड y दोनों डिपेंड करते हैं. अब इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, सो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन. सो डेरिवेटिव कैसे होगा, ओके, सो यहाँ पे dy upon dx is given by dy upon dt upon dx upon dt. Of course इस केस में t is the parameter. Okay, t is the parameter. तो सम में पैरामीटर अगर t है तो dy by dx का वैल्यू आप कैसे करोगे, dy by dt upon dx by dt and that will give us your, मतलब उससे हमको जो उसका आंसर आ जाएगा. सो dy by dx कैसे करते हैं हम लोग, dy by dt ढूंढेंगे, dx by dt ढूंढेंगे और हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो दैट इज हाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस हैपन. ठीक है, तो कोई सम है, सपोज x इक्वल टू से इट इज a t स्क्वायर, y इक्वल टू है 2at सपोज, तो इसमें t इज द पैरामीटर सम में. ठीक है, t इज द पैरामीटर. तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, वी विल फाइंड विद रिस्पेक्ट टू t. ओके, तो x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t. सो ऑफ कोर्स a इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t. यहाँ पे dy अपॉन dt है, 2a कांस्टेंट बचेगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. So what is dy upon dx, that will be equal to
dy upon dt upon dx upon dt. So what is dy upon dt will be equal to 2a और ये आ जाएगा upon 2at, ये कट हो जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 1/. So this is how we can find the derivative of parametric functions. कैसे होता है, हम लोग दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग से फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको dy by dx का वैल्यू मिल जाता है. Is this differentiation clear for everyone? This is the formula that we will follow to find the derivative of parametric functions. dy by dx होता है dy by dt upon dx by dt और dy by d theta upon dx by d theta, dy by dm upon dx by dm. डिपेंड करता है कि पैरामीटर सम में क्या दिया है, उस हिसाब से हम लोग उसका पैरामीटर्स को जो है मतलब डिफरेंशिएशन के टाइम पे चेंज करते रहते हैं. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सबको ये क्लियर है? Is there anyone who is not able to understand what is parametric differentiation? See to it that you are practicing and understanding the formulas. Okay, I can see like 1.3 is done, but I think इसका एक 9th वाला सम करवाने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, we'll see that. अभी क्योंकि मैंने पैरामीट्रिक का थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया तो मैं उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, तो बाद में 9th वाला सम डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो यू कैन सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया. x इक्वल टू 80² y इक्वल टू 280. आंसर आपको आएगा 1/t. ओके, so this is not a like that difficult question. Let us see x equal to a cot theta, y equal to b cosec theta. So इसमें theta हमारा पैरामीटर है, तो x equal to a cos theta, a cot theta, and y equal to b cosec theta. So this is the exercise 1.4, and we are seeing first question, first sum, sorry, second sum. So that is x equal to a cot theta, y equal to b cosec theta. So अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल गेट dx अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट है, आप cot का डेरिवेटिव करोगे. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot? दैट विल बी ऑब्वियसली माइनस cosec स्क्वायर थीटा. ओके, यहाँ पे भी आप फाइंड करोगे dy by d थीटा. सो b इज अ कांस्टेंट, आप cosec का डेरिवेटिव लिखोगे, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस cosec इंटू कॉट. सो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये dy by d थीटा आ जाएगा. नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड व्हाट इज dy by dx. तो ऑब्वियसली ये होगा dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस विल बी माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. ध्यान में रखो, आपको पहले y का वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपका न्यूमरेटर बनेगा. ठीक है, तो ये बात भूलना नहीं कि y का वैल्यू न्यूमरेटर है और x का dy by जो dx by d थीटा है वो डिनोमिनेटर. सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा. सो ऑफ कोर्स माइनस एंड माइनस विल कैंसिल, कोसेक एंड 1 कोसेक विल कैंसिल, बचा कोसेक और कॉट है, मतलब कॉट न्यूमरेटर पे है और कोसेक डिनोमिनेटर पे है. तो अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट इज कॉस अपॉन साइन एंड दिस इज 1 अपॉन साइन. तो ये साइन और साइन आप कट कर दोगे, फाइनल आंसर में आपको मिलेगा b cos theta upon a. So this is the required dy by dx. Of course it is coming in terms of theta. Okay, तो ये अपना आंसर आएगा, dy by dx is b cos theta upon a. सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, जैसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है, बट हाँ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फेयरली इजी लाइक दिस. सम क्वेश्चंस माइट बी लाइक हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना है एंड ऑल दैट, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फेयरली इजी, फेयरली सिंपल टू सॉल्व. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन?
ट्राई करना आप लोग इसको घर पे सॉल्व भी करो, प्रैक्टिस भी करो। ओके अभी यहाँ पे जब मैं ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट दे आर नॉट पुटिंग इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। आई मीन लाइक दैट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द वे दे आर आंसरिंग। ठीक है, few of the students are putting in their efforts, तो वही आंसर करते हैं। most of the students are not like even least bothered, ऐसा लग रहा है। don't be like that, okay, try and study because जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके केस में ऐसा नहीं होगा कि that you are passing out without giving your exam, that is not going to happen every year। ठीक है, so see to it that you are studying properly। okay, the exams whenever it is conducted, obviously in your case it will be conducted। इतना वैक्सीनेशन सब कर रहे हैं सबका, तो ऑब्वियसली इसके लिए तो नहीं है कि भाई घर पे बैठ के आप पास हो जाओगे। सो सी टू इट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। ओके, आप अपना एफर्ट डालो, बाद में आपको उसका फायदा मिल जाएगा। सो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वाई इक्वल टू लिखा है लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दो टर्म्स है, इसमें ए कांस्टेंट है और एम हमारा पैरामीटर होगा। ठीक है, सो वही एक्चुअली कहीं पे मेंशन होना चाहिए था, बट सो एक्स इक्वल टू रूट ऑफ a square plus m square and y equal to log of a square plus n square। okay, so this is what is given to us। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, differentiating with respect to m। so we'll get dx upon dm। अभी यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा। so what is the derivative of root? it is 1 upon 2 root of, करेक्ट, रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 upon 2 root of। ऑफकोर्स यहाँ पे जो x का टर्म है हमारे सम में वो यहाँ पे आएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमको इसके आगे चेन रूल लिखना पड़ेगा। वी विल राइट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 1 upon 2 root of a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इनटू the derivative of a square plus n square। आप चाहो तो zoom करके देखना, I mean like directly mobile पे देखने पे it is not that clear, but if you zoom it, it is quite clear। okay, I can see in it my mobile also। so आप थोड़ा zoom करके देखना, you will get the values that is written over there। so it is 1 upon 2 root of a square plus n square into, अभी आप a square का डेरिवेटिव लिखोगे, करेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। ऑब्वियसली a स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। अब m स्क्वायर का डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू m है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू m, तो ऑब्वियसली m स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m लिखने पे आपको उसका आंसर क्या आएगा, आपको उसका आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू 2m, ऐसे आएगा। x स्क्वायर का कैसे डेरिवेटिव लिखते थे वैसे ही, m square का derivative with respect to m, you will be getting 2m। we can cancel off this 2 and we will get the value m upon the root of a square plus m square। this is dx upon dm। ये क्लियर है सबको, dx upon dm का पार्ट? करेक्ट, यश ने इसका फाइनल आंसर बता दिया। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग ये y से स्टार्ट करेंगे एंड अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू m। ओके, अभी एक्चुअली a और b हमारे लिए कांस्टेंट्स ही रहता है। ओके, a b ऐसे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। सो ऑब्वियसली द पैरामीटर इन दिस टर्म वाज एक्चुअली m। इट शुड हैव बीन मेंशन्ड, लाइक आई सेड, वहां पे कहीं ना कहीं पे इसको मेंशन करना चाहिए था कि a और m में से पैरामीटर कौन है, बट जनरली a कांस्टेंट के लिए यूज होता है, इसके लिए मैंने m को पैरामीटर रख के उसको डिफरेंशिएट किया। ओके, बट ऑफ कोर्स इट शुड हैव बीन मेंशन्ड, दैट वुड हैव बीन मच मोर बेटर। So log of a square plus n square, let us differentiate this once again with respect to m। so आपको यहाँ पे आएगा dy upon dm। आप सबसे पहले क्या करोगे, log का डेरिवेटिव करोगे। so what is the derivative of log? it is 1 upon what? a square plus m square।
इनटू, अब इसके साथ में आपको फिर से आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ कोर्स ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। So differentiating this with respect to m, इसके लिए derivative with respect to m of a square plus m square. Okay. So dy upon dm. So what is dy upon dm equal to? It is 1 upon a square plus n square. And इसका derivative में आपको आएगा 2m करके आएगा again. ठीक है. So m square का derivative हो जाएगा 2m. अब दोनों को divide करो बस. So we can say what is dy upon dx equal to, so that is dy upon dm upon dx upon dm. तो ये हो गया 2m upon a square plus m square, एंड ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो हो जाएगा m upon the root of a square plus m square. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आई कैन कैंसिल ऑफ दिस m, ठीक है, और ये ऊपर इधर 2 के साथ आएगा रूट का टर्म, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन वी ऑल्सो हैव a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अभी a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, ओके। इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज रूट 2 इंटू रूट 2, करेक्ट, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 का टर्म को मैं ऐसे रूट और रूट करके 2 बार लिख सकता हूँ। तो सेम तरीके से जो a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारे सम में था उसको मैंने 2 बार रूट के अंदर करके लिखा है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑब्वियसली 1 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल कैंसल, and so the final answer that we are going to get is 2 upon the root of a square plus n square. Is this clear? हमें पता कैसे चलेगा कांस्टेंट क्या है। Like I said, a and b are generally what we have constants, unless and until like कहीं पे mentioned है कि कोई सम में a आ रहा है और वहां पे बोला कि a इज द पैरामीटर, तो ऑब्वियसली जो दूसरा रहेगा वो कांस्टेंट ट्रेट होगा, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर टेकिंग m एज द पैरामीटर बिकॉज मोस्टली a का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट्स में ही काउंट करते हैं, सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग m एज आवर पैरामीटर एंड a एज द कांस्टेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड और द डिजायर्ड dy by dx वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आएगा dy by dx। Okay, so hopefully this question is also clearly understood by everyone. तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So sin थीटा tan थीटा ये आप कर सकते हो, करेक्ट। sin का डेरिवेटिव होगा cos, tan का होगा sec स्क्वायर, फिर आप उसको लिख सकते हो। So it is not that difficult. I'll directly go to the next one, that is the 5th question. So x equal to a into 1 minus cos theta, y equal to b into theta minus sin theta, ठीक है। तो ये वाला सम करते हैं, फिफ्थ वाला। So x equal to a into 1 minus cos theta and y equal to b into theta minus sin theta, okay। So ये अपना दिया हुआ टर्म्स है, हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑब्वियसली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। So differentiating this with respect to theta, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a का टर्म है बट स्टिल इट इज अ कांस्टेंट ओनली, ओके। सो a कांस्टेंट है, बाहर ही रह जाएगा। आप 1 का डेरिवेटिव करोगे cos थीटा का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली दैट विल बी 0, करेक्ट। तो 1 का डेरिवेटिव 0 है। अब बचेगा cos का डेरिवेटिव, सो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। ऑफ कोर्स माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, करेक्ट। सो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा a इंटू जस्ट sin थीटा। सो दिस इज आर dx अपॉन डी थीटा, ओके। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे dy by d थीटा, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग दिस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा आपको मिलेगा। तो इसमें अगेन b इज द कांस्टेंट टर्म, सो आप क्या करोगे, दिस इज थीटा का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
So obviously that is going to become 1. Sin का डेरिवेटिव हो जाएगा that is cos. So यहाँ पे 1 minus cos theta. Correct. नहीं b cos theta नहीं आएगा, 1 minus cos theta से. So theta का डेरिवेटिव with respect to theta, obviously that value will become 1. So d theta upon d theta, it became 1. Okay, ये 1 हो गया और sin का डेरिवेटिव हो गया था cos. So this is the value of dy upon d theta that I am getting. इसको मैं ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. अब बस इसको हम लोग डिवाइड करते हैं. So we can now find what is dy by dx. So what is dy by dx? It is dy upon d theta upon dx upon d theta. So this is d into 1 minus cos theta upon a into sin theta. So अभी यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूलास डाल सकते. करेक्ट. So यश इज राइट. यहाँ पे हमको हाफ एंगल फॉर्मूलास को यूज करना चाहिए. So if you are studying the formulas regularly, आपको सामने जैसे ही आपको जरूरत पड़ता है कि हाँ भाई कुछ फॉर्मूला यूज करना है, you immediately are able to understand कि हम लोग को यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज करना है. Okay. So in this case, obviously we are going to use the formula 1 minus cos theta के लिए 2 sin square theta upon 2. आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है. Take some efforts and go through the formulas. तो आपको ये फॉर्मूला उसमें मिल जाएगा. Sin theta का हाफ एंगल फॉर्मूला is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay. फिर आप कैंसिलेशन करना. तो you can see यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाएगा. एक sin theta by 2 भी कट हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा? This is b upon a. Sin theta by 2 upon cos theta by 2, obviously that will become tan theta by 2. So this is the value of dy by dx. Correct. तो इसमें यश ने इसका फाइनल आंसर भी बता दिया है. What is the answer that we should be getting? So it is b by a, या b tan theta by 2 upon a. So this is how we have to solve this question. सबको क्लियर है ये? Everyone is able to understand. Of course, अब मैं सारे के सारे सम्स तो नहीं कर सकता इस टाइप के. तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that will be a homework. Okay. So in this, आप फर्स्ट पार्ट में, okay. So in this part, ये पार्ट में आप x raised to n का फॉर्मूला जैसे into you will write the derivative of t plus 1 by t. ऐसे लिखो. Okay. So you'll write the derivative of t plus 1 by t. Of course इसका derivative 1 हो जाएगा, इसका minus 1 by t square ऐसे आ जाएगा. Okay. So this is how you can write. Okay. सेम वे यहाँ पे आप a raised to x का फॉर्मूला यूज करोगे और अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव. तो इसमें चेन रूल यूज करना. यू विल बी कैंसिलिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द टर्म्स. sec cube theta जो है that is the answer for the fourth question. So नाजरीन I think आपने वही बताया. तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपको sec cube theta आ रहा है that is correct. That is the answer for what is that? Question number 4. Okay. So भी डायरेक्टली हम लोग 7th वाला क्वेश्चन पे आते हैं. x equal to cos inverse of 2t upon 1 plus t square, y equal to sec inverse of root of 1 plus t square. So let us see these questions. 7th question. So 7th question में क्या लिखा है? We have x equal to cos inverse of 2t upon 1 plus t square and y equal to sec inverse of root of 1 plus t square. तो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है. So we have cos inverse of 2t upon 1 plus t square and x equal to sec inverse of okay. So sec inverse of root of 1 plus t square.
ओके अब थोड़ा सा जूम करना अगर आपको क्लियर दिख नहीं रहा है तो इन केस. So if you remember what was the method in which we used to solve this question? Okay, याद करके देखो इसको हम लोग कैसे करते थे. 2t upon 1 plus t square. तो इसको हमको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा so that it becomes some trigonometric formula. Correct? So 2t upon 1 plus t square. Correct. तो यश ने जो बताया है it is tan theta. तो अगर आप formulas regularly पढ़ रहे हो तो you will be able to see that this is like 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो ये इस फॉर्मूला जैसा है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ओके सो ऑब्वियसली हम लोग उसको अप्लाई करेंगे. t के जगह पे हमको tan थीटा लिखना पड़ेगा. थीटा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x या tan इनवर्स ऑफ t, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है मतलब पूरा फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने के बाद. सो ऑब्वियसली वी विल हैव टू से लेट t बी इक्वल टू tan थीटा. सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट. सो थीटा विल बी इक्वल टू tan inverse of t. ठीक है सो t इक्वल टू tan थीटा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ t. ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं सेकंड पार्ट के लिए भी. बट यहाँ पे फिलहाल मैं x इक्वल टू इसमें पहले सॉल्व करता हूँ. तो cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. So this is cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square. अभी सोच के देखो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta ये होता किसका फॉर्मूला है. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Yes, Yash is correct. This is formula for sin 2 theta. ठीक है तो ये जो फॉर्मूला किसका है, दिस इज फॉर sin 2 theta. ऑब्वियसली cos इनवर्स जब sin के साथ कैंसिल होगा. ठीक है पहले क्या बताया था, cos इनवर्स जब साइन के साथ कैंसिल होगा तो डायरेक्टली थीटा का पार्ट नहीं बचेगा. वो क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस के फॉर्म में. सो दिस विल बिकम पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ऐसे हो जाएगा. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t ऐसे हो जाएगा. अभी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू t. ओके नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस रीसब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ओरिजिनली क्वेश्चन t के टर्म्स में तो मैं आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं लिख सकता. आई विल हैव टू गो टू t ओनली. सो इसके लिए हमने इसको रीसब्स्टिट्यूट किया है. बट ऑफ कोर्स हम लोग एंट्रेंस के टाइम पे इसको रीसब्स्टिट्यूट किए बगैर सॉल्व करना भी सीखेंगे. ठीक है सो दैट इज अ डिफरेंट मेथड. मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं, हल्का सा. हम लोग रीसब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते वो वहां पे देखेंगे. बट अभी फिलहाल हमको स्टेप्स पूरा लिखना है. सो पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव विल बिकम 0. -2 बच जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. एंड सो द फाइनल आंसर इज सेकेंड. ओके पाई बाय 2 क्यों आ रहा है, ठीक है देखो आप. Like I said, cos इनवर्स जब sin थीटा पे अप्लाई होगा तो इसका फॉर्मूला आपको पाई बाय 2 माइनस थीटा करेगा. ठीक है अब ऐसा क्यों वो भी देखते हैं. सो cos इनवर्स ऑफ देखो आप sin थीटा, sin को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा. You should be knowing this formula. Cos pi by 2 minus theta is sin theta. Cos 90 minus theta कितना होता है, sin theta. तो of course ये cos inverse और ये cos चला जाएगा, जो बचेगा वो ये है pi by 2 minus theta. So that is why when we are applying cos inverse on sin, तो वहां पे आपको क्या आएगा, pi by 2 minus theta ऐसे. Of course same thing sin inverse cos पे अप्लाई होगा तो भी आएगा, tan inverse cot पे अप्लाई होगा या cot inverse tan पे अप्लाई होगा तो भी आपको pi by 2 minus थीटा ही आएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर. पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखने का रीजन क्या है. ओके सो ये अपना dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू है -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. व्हाई वी आर राइटिंग पाई बाय 2 माइनस थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. तो बाहर अगर cos इनवर्स था तो अंदर मुझे cos का टर्म लेके आना.
उस तरीके से सोच के हम लोग ने उसको π/2 माइनस लाया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So what is 1 plus tan square theta? Obviously that is sec square theta. So sec inverse of root of sec square theta, root और square कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा sec inverse of sec theta. तो sec inverse भी sec के साथ कट हो जाएगा, तो आपको बस थीटा बचेगा। थीटा का वैल्यू था tan inverse of t। फिर आप इसको डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू t, यू विल गेट dy अपॉन dt is equal to tan inverse 1/1 plus t square। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो ये तो हमने dy अपॉन dt, dx अपॉन dt सब ढूंढ लिया। सो व्हाट इज नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू, सो दैट विल बी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। सो दैट इज 1/1 plus t square अपॉन -2 अपॉन 1 plus t square। So 1 plus t square क्या हो जाएगा, कट। आपका फाइनल आंसर आएगा -1/2। So this is the final answer that we wanted. Is this also clearly understood? -1/2. So the final answer is -1/2. ठीक। So let us now go to the next question. अभी next question same है, आप लोग उसको कर सकते हो। देखो आप cos inverse of 4t cube minus 3t। तो वही t के लिए आप cos डालोगे, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, करेक्ट। 4 cos cube theta minus 3 cos theta, that is formula for cos 3 theta if you remember। तो ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपको यूज करना है 4t cube minus 3t के। So once that is done, you can easily like solve, okay। और वही यहाँ पे t का वाली cos t इसमें भी डालना, सेकेंड पार्ट में भी आपको इसका डेरिवेटिव इजीली आ जाएगा, ठीक है। So I think it will be -1/3 or something like that, ठीक है। So यहाँ पे फिलहाल अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। What is going to happen is we will differentiate these with respect to theta, but at the end we have to substitute for theta some values। तो सम में दिया होगा थीटा का क्या वैल्यू, आपको सम में सब्स्टिट्यूट करना। तो उसको हमको लास्ट में, एकदम लास्ट स्टेप में जब पूरा dy/dx हो जाएगा, उसमें हम लोग t का वैल्यू को या थीटा का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। So that is what we have to understand in this type of question। dy/dx हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। So let us now go to the second question first sum। x equal to cosec square theta, y equal to cot cube theta। So second question first sum, x is equal to cosec square theta, y is equal to cot cube theta। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑब्वियसली स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x फॉर्म में, करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। सो दैट इज 2x। सो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, करेक्ट। तो ये अभी आपने स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा। अभी भी किसका डेरिवेटिव बाकी है, दैट इज ऑफ कोसेक थीटा, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे अच्छा इसका आंसर ही बता दिया नहीं, मतलब इसने 8th वाले का आंसर बताया। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे। तो डेरिवेटिव किसका आएगा, कोसेक थीटा का भी डेरिवेटिव आएगा।
So what is the derivative of cosec theta? So cosec theta का derivative होता है minus cosec into cos. So this is 2 cosec theta into इसका derivative में आपको आएगा minus cosec theta into of course we have another term that is cot theta. Okay, तो ये हमने dx upon d theta को find कर लिया. Correct. So this part is done. We have found what is dx upon d theta. Next, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y के लिए वैसे करेंगे. So y equal to क्या लिखा है? This is cot cube theta. Differentiating this with respect to theta. So dy upon d theta. तो पहले आप cube का derivative लिखोगे. So what is the derivative of cube? This is 3 cot square theta into we will get the derivative of cot theta. करेक्ट. तो यहाँ पे आपने पहले क्यूब का डेरिवेटिव लिखा, तभी भी वहां पे डेरिवेटिव जो बचा था दैट वाज फॉर कॉट थीटा. सो कॉट का डेरिवेटिव अभी लिखना बाकी है. सो दिस इज 3 कॉट स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट? तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा. So ये हमको जो आ रहा है that is the derivative of dy upon d theta. Now we can go for finding dy upon dx. So dy upon dx क्या हो जाएगा? This is dy upon d theta upon dx upon d theta. So what is dy upon d theta? तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो ये माइनस में आ रहा है. ठीक है. So minus 3 cot square theta into cosec square theta अपॉन माइनस 2 यहाँ पे देखो कोसेक थीटा है और एक कोसेक थीटा है. सो कोसेक इंटू कोसेक, सो दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट. सो भी यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस कट. कोसेक स्क्वायर थीटा भी कट हो जाएगा. आप एक कॉट थीटा को कट कर सकते हो. करेक्ट. कॉट स्क्वायर में से एक कॉट थीटा भी कट हो जाएगा. So what is left? It is dy by dx is equal to 3 cot theta upon 2. So ये अपना dy by dx. बट ये अपना फाइनल आंसर है क्या? नहीं. करेक्ट. यश ने इसका करेक्ट आंसर बताया. So this is not the final answer. What we had to do to get the final answer, we had to substitute theta to be equal to, okay, सब में क्या बताया है देख लो, pi by 6. तुमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है pi by 6. So this is 3 cot pi by 6 upon 2. So cot 30 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करना, उसका वैल्यू √3 आता है. So you'll get the answer as 3 √3 by 2. So this is the required dy by dx at थीटा इक्वल टू पाई बाय. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो भी आपको अच्छे से आना चाहिए कैसे इसको सॉल्व. सो ये जो बाकी के क्वेश्चन है दे आर वेरी मच सिमिलर टू दिस वन. ठीक है. आपको वैसे ही करना है. वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस. ओके. पहला वाला जो होगा whatever be the parameter, तो x का डेरिवेटिव होगा with respect to that parameter, y का भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, dy by dx आएगा and then you will substitute whatever be the value of t or theta, whatever be the parameter used in the sum. So I don't think I have to do the second question. मैं third question कर रहा हूँ. third और fifth बहुत ही similar है. okay, तो मैं third question करके बता रहा हूँ, तो आप fifth फिर कर सकते हो. ठीक है. So second, fourth and fifth will be a homework. I will directly solve the third question. Okay. So it is x is equal to t square plus t plus 1, y equal to sin pi t by 2 plus cos pi t by 2. ठीक है. So यहाँ पे आएगा sin
पाई टी बाय 2 प्लस कॉस पाई टी बाय 2. ओके, सो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली दिस विल बी नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. सो यहाँ पे dx अपॉन dt हो जाएगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा. सो टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x फॉर्म, सो दैट इज 2t प्लस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज 1. सो ये हो गया dx अपॉन dt दैट इज 2t प्लस 1. ओके, अच्छा यश ने इसका बाद का भी आंसर बताया है. 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा. आई थिंक इसके प्रीवियस वाले का है, क्वेश्चन 2 का है. करेक्ट, यश ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताया -√3 which seems to be quite correct. ओके, अभी फिलहाल हम लोग इसका आगे डेरिवेटिव कर रहे हैं. करेक्ट, तो यहाँ पे dy अपॉन dt, तो आप पहले साइन का डेरिवेटिव लिखोगे. करेक्ट, तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? दैट इज कॉस. कॉस क्या? कॉस पाई टी अपॉन 2 इनटू, अब आपने साइन का डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, तो अभी आप किसका डेरिवेटिव लिखोगे? पाई टी अपॉन 2 का. सो दिस इज ऑल्सो टू बी रिटर्न बिकॉज इट इज चेन रूल, तो ऑब्वियसली हमको ऐसे लिखना चाहिए. प्लस अभी कॉस का डेरिवेटिव होगा. कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन पाई टी बाय 2 इनटू द डेरिवेटिव ऑफ पाई टी बाय 2, ऐसा आएगा. ओके, सो कॉस पाई टी बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई टी बाय 2 और ऐसे सब वैल्यूज आएगा. सो इसमें ऑफकोर्स पाई बाय 2 इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? दैट इज 1. ओके, सो यहाँ पे dy बाय dt इसका वैल्यू हमको क्या बचेगा? सो आई विल गेट कॉस पाई टी बाय 2 एंड ये जो पाई बाय 2 था ना वो बाहर आ गया. सो ऑफकोर्स डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी में मतलब हमारे पास में सिर्फ 1 बचेगा. प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस हो रहा था. यहां पे आपको मिलेगा साइन पाई टी बाय 2 एंड इनटू यहाँ पे ऑब्वियसली इसमें भी पाई बाय 2 आएगा. टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. सो दिस इज व्हाट इज dy बाय dt एंड दिस इज व्हाट इज dx बाय dt. सो फाइनली वी कैन से व्हाट इज dy बाय dx. ठीक है, तो अभी हम लोग dy बाय dx लिख सकते हैं बिकॉज जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू से सब हमने फाइंड कर ली. So this is dy by dt upon dx by dt, and so this is pi by 2. I can take out as a constant, a common term. I will be left with cos pi t by 2 minus sin pi t by 2 upon 2t plus 1. अभी आप इसमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. आपको सम में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो t का वैल्यू 1 हो जाएगा. ऑब्वियसली जब वहां पे t का वैल्यू 1 हो रहा है मतलब पाई इंटू 1 अपॉन 2 मतलब पाई बाय 2 ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे वाले आएंगे पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 अपॉन ये ऑफकोर्स 2 इंटू 1 प्लस 1 ऐसे दिखेगा. करेक्ट, तो व्हाट इज cos 90? अब ये पता होना चाहिए आपको कि cos 90 का वैल्यू क्या है. cos पाई बाय 2 cos 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो. यश ने इसका करेक्ट आंसर वैसे बता दिया. इट इज माइनस पाई बाय 6 एंड साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 1. ठीक है, सो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाले पार्ट से एंड अपॉन में यहाँ पे क्या आ रहा है 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो द फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाय 6. सो ये आपका फाइनल आंसर है.
इज दिस क्लियर? तो ये भी बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। सो cos π/2 का वैल्यू जानवी ने, शिवम ने, सबने बताया है कि उसका आंसर क्या आएगा 0। यश ने इसका पहले आंसर फाइनल वाला बता दिया था, दैट वाज -π/6। होपफुली ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ, ओके, मतलब ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस में ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। सो अभी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ओके सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, so ये third question, like I have previously said, they are all like prove that type questions। तो ऐसे questions जब भी आते हैं तो काफी important रहता है। so इसमें सब कुछ ऐसा है कि like we have to think, question में से कुछ ऐसे करना है कि हमको ये कुछ prove करके बताना। so it is not like एकदम straight forward questions है सभी के सभी, वैसे नहीं। in fact भले ये questions parametric का है, I am not going to use the idea dy upon d theta या dx upon d theta पे डिवाइड करने का जो आइडिया है, मैं उसको यूज नहीं करूंगा। I will try to solve this by solving it in another method। ठीक है, और वो मेथड क्या होगा कि that is to eliminate the parameter। So I will try to eliminate the parameter so that I can find the derivatives more easily। ठीक है, तो ज्यादा इजीली हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ऐसा हम लोग समझ करेंगे। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू a रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, y इक्वल टू a रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, सो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सम, x इक्वल टू a रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा एंड y इक्वल टू a रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। अब सोच के देखो अच्छे से। ओके, इसका हम लोग अगर डेरिवेटिव करते हैं, मतलब इसका अगर हमको डेरिवेटिव करना है dy/dx, इसमें प्रूव क्या करना है वो भी बहुत मैटर करता है। वी हैव टू प्रूव दैट dy/dx इज माइनस y/x। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करके बताना है दैट dy/dx शुड बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस y/x। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सोच के देखो अभी, ठीक है, हाउ कैन आई सॉल्व दिस। ऑफ कोर्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर डिवाइड करें, सॉल्व करें, बहुत मेहनत के बाद में ऑफ कोर्स हमको ये आंसर आएगा, dy/dx इज माइनस y/x, दैट इज द आंसर, वो हमको आ जाएगा। बट दैट वुड बी वेरी लेंदी, क्योंकि मुझे एक बार इसका डेरिवेटिव करना है, एक बार इसका डेरिवेटिव करना है, फिर डिवाइड करना है, आगे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, काफी कुछ। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई वांट टू एलिमिनेट थीटा। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, आई वांट टू एलिमिनेट थीटा, मतलब मेरे सम से थीटा को निकाल देना है। अब सोच के देखो वहां पे जो दिया हुआ टर्म्स है उसमें से थीटा कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। x इक्वल टू लिखा है a रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, y इक्वल टू लिखा है a रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग वहां से थीटा को हटा सकें। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपको याद है, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ सम्स में हम लोग ने उसको एक्सप्लिसिट बनाया, करेक्ट। तो एक्सप्लिसिट सबसे इजी तरीका था, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट इम्प्लिसिट है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट पैरामेट्रिक। तो क्यों हम लोग पैरामेट्रिक में सॉल्व करें, ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना, तो इसके लिए हम लोग उसको इम्प्लिसिट में, मतलब थीटा एलिमिनेट करके लिखने ट्राई करें। सोच के देखो यहाँ पे से थीटा एलिमिनेट कैसे हो सकता है। करेक्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो यश ने जो बताया है वो करेक्ट है। हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, जानवी ने भी बताया कि देयर माइट बी यूजिंग, मतलब कुछ ना कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, करेक्ट, वैसा ही है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज में ये आ जाएगा। बट यश ने जो है, ही हैज लाइक थॉट इट थ्रू, मतलब पूरा उसने सोच लिया है कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है ये दोनों इक्वेशंस को। तो वी कैन यूज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी, ये नाजरीन ने भी बताया था।
So what we are going to do is we are going to multiply both the equations. So multiplying both the equations. So यहाँ पे हमको आएगा dx अपॉन मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे दोनों इक्वेशंस को dx अपॉन में. So when we are multiplying both the equations, तो x into y हो जाएगा. LHS में आएगा x into y. और RHS में क्या होगा, a रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई होगा a रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा. ऑब्वियसली a और a मल्टीप्लाई होने पे दिस विल बिकम a स्क्वायर. एंड क्योंकि दोनों रूट में है, मैं एक बड़ा रूट लिख के दोनों को उस रूट के अंदर लिखता हूं. सो दिस इज sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा. सो अभी सोच के देखो, ऑब्वियसली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ये, मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ. सो आई कैन राइट इट एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब सोच के बताओ, फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये. What is sec square theta minus tan square theta equal to? Obviously it is equal to 1. यहाँ पे रूट ऑफ 1 बचेगा, मतलब बेसिकली इट इज a स्क्वायर. तो अभी आप इसका डेरिवेटिव करना, ठीक है. सो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. ऑफ कोर्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वहां पे 0 है. x इंटू वाई, u इंटू v का रूल अप्लाई कर. तो आई विल गेट x derivative of y plus y derivative of x equal to constant का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. सो यहाँ पे देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो रहा है. तो ये प्लस y को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, माइनस y करता हूँ. सो x dy by dx इज इक्वल टू माइनस y, और ये x को यहाँ पे लेके आना. सो dy by dx इज माइनस y by x. सो दैट इज द फाइनल आंसर. Is this question clear? कैसे हमने किया है? We have first of all eliminated theta. Theta कैसे eliminate किया? We saw that there was fundamental identities in the sum sec theta minus tan theta, sec theta plus tan theta. तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने. फिर उसमें से 1 डाला, उसको एलिमिनेट कर दिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया. फिर बाकी का डेरिवेटिव किया और हमको हमारा आंसर आ गया. आप कुछ भी करके देखो, अगर आपने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व किया होता, then this question would have taken much more longer to solve. इसको सॉल्व करने के लिए ही हमको काफी टाइम लग गया होता. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ सम्स. अब इसको तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिस से ही ये थोड़ा बहुत और क्लियर होगा. जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपको अलग अलग तरीका दिखाई देगा मतलब एलिमिनेशन करने का. अब ये sec और tan था, सो ऑब्वियसली फंडामेंटल आइडेंटिटी वाज देयर प्रेजेंट, तो इसके लिए हमने उसके हिसाब से सोचा. कभी कभी कोई सम में कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं, स्टिल हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये सब क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग कोई भी पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं. मतलब सभी सम्स में एलिमिनेट होगा ऐसे नहीं है, हो सकता है. अगर होता है तो सम बहुत छोटा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सम काफी लेंथी रहेगा. ओके, सो विद प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो अगर आपका क्वेश्चन था तो मैं उसका आंसर ही बता देता हूँ. प्रैक्टिस बहुत जरूरी. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, x इक्वल टू e raised to sin 3 theta, y equal to e raised to cos 3 theta, then show that what is dy by dx equal to, it is minus y log x upon x log y. ऐसे हमको प्रूव करके बताना, ठीक है. सो वंस अगेन लाइक आई हैव सेड कि क्वेश्चन से ही आपको काफी कुछ हिंट्स मिलता है. ओके, तो यहाँ पे y माइनस y log x upon x log y ऐसे प्रूव करके बताना, ठीक है. सो व्हाट इज गिवन, x इज इक्वल टू e raised to sin 3 theta, क्या मतलब sin 3t था, और y इक्वल टू लिखा है e raised to cos 3t, and we have to show that the derivative dy by dx is minus y log x upon x log y. Okay,
करेक्ट। सो नाजरीन ने इसका बताया कि पहला स्टेप हमको टेकिंग लॉग करना चाहिए, विच इज करेक्ट। वाई आर वी अप्लाइंग लॉग? बिकॉज देखो सम में देख रहे हो log x लिखा है, log y लिखा है। ऑब्वियसली log x log y कब आ सकता है? जब हम लोग उसको अप्लाइंग क्या करेंगे? लॉग। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी अप्लाइंग लॉग। तो लॉग अप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा? दिस इज log x इक्वल टू log of e raised to sin 3t and log y equal to log of e raised to cos 3t। ऐसे हो जाएगा। अब फर्स्ट जो रेस टू का पार्ट है वो नीचे आ जाएगा एंड यस वी विल यूज log e इक्वल टू 1। सो यहाँ पे sin 3t बाहर, log e का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे cos 3t बाहर, यहाँ पे sin 3t cos 3t log e आएगा, log e का वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब देखो यहाँ पे आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस साइन एंड दिस cos, ऑफ कोर्स मतलब t के साथ एलिमिनेट करना है। तो सोच के देखो इसका हम लोग कैसे एलिमिनेशन कर सकते हैं। sin 3t और cos 3t हमको सम में आ रहा है, sin एंड cos सम में आ रहा है। हाउ कैन आई एलिमिनेट sin एंड cos? बहुत ही सिंपल है। हाँ मतलब आप थीटा मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं, आप इमेजिन करो वो थीटा ही है। तो ये क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यूज करो, बराबर। तो 3t को आपको थीटा लिखने का जरूरत नहीं है, थीटा कैन बी एनीथिंग। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये और ये जो है साइन और कॉस जो अप्लाई हो रहा है वो वैल्यूज सेम होना चाहिए, करेक्ट। सो इन दिस केस आई कैन से सिंस sin स्क्वायर 3t प्लस cos स्क्वायर 3t इज इक्वल टू 1, करेक्ट। आप कभी भी कोई भी फंडामेंटल आइडेंटिटी में मतलब साइन स्क्वायर जो है थीटा की जगह पे कुछ और भी होता है, वही अगर cos स्क्वायर के साथ भी है, cos स्क्वायर that value plus sin square, obviously that value will always come out to be equal to 1 only। cos square theta plus sin square theta हमेशा ही 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे sin square 3t plus cos square 3t equal to 1। तो अभी यहाँ पे मैं sin 3t का स्क्वायर लिखूंगा, मतलब log x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये log y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू क्या आएगा आपको? 1। अब आप इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, करेक्ट। x कोई भी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो इस केस में अपना x है log x इनटू, ऑब्वियसली यू विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस, अब log y द होल स्क्वायर था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 log y इनटू, अब इसका डेरिवेटिव में भी आपको लिखोगे इनटू द डेरिवेटिव ऑफ log y। ऑफकोर्स 1 वाज ए कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया है? 3। यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? अभी बस थोड़ा सा ही डेरिवेटिव लिखना है, वैल्यूज को हवा पे करना है, अपना आंसर आ जाएगा। Is this clear for everyone? 2 log x into derivative of log x plus 2 log y into derivative of log y equal to 0। आगे बस इसका थोड़ा डेरिवेटिव ही लिखना है। So I'll get 2 log x into the derivative of log x which is 1 by x plus यहाँ पे आपको आएगा 2 log y into derivative of log y में आपको क्या आएगा? 1 by y। एंड ध्यान में रखना अभी इसके साथ में आपको लिखना है dy by dx, क्योंकि y का टर्म में dy by dx आना बहुत जरूरी है। कोई भी y का टर्म है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो ऑब्वियसली dy by dx आंसर में जरूर आएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है ये सबको? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो 2 log x
इंटू 1/x लिखा हुआ है ऑफकोर्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 2 log x अपॉन x प्लस 2 log y अपॉन y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा ये, so we will get 2 log y upon y into dy by dx is equal to minus 2 log x upon x। of course आप 2 कट कर सकते हो, y इधर मल्टीप्लाई होगा log x के साथ, log y इधर मल्टीप्लाई होगा x के साथ। so what is dy by dx equal to, it is minus y log x upon x log y। तो ये जो है यही हमारा गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज। इज दिस क्वेश्चन क्लियर फॉर एवरीवन? सबको ये स्टेप्स क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कैसे किया है? So most of the questions will be done in the same pattern। क्या पैटर्न है? We will try to eliminate the parameter। किसी ना किसी तरीके से हम लोग पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, एंड देन हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एज इफ इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एंड जो रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाना चाहिए। किसी को भी इसमें कोई डाउट है, ये वाला मेथड्स में या ये वाला क्वेश्चन में, ये वाले टाइप कुछ भी प्रॉब्लम है? RHS का पार्ट रिपीट, RHS मतलब आई थिंक यू आर सेइंग कि ये जो सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा वो, तो जैसे हम लोग करते थे, कैसे करते थे कि dy by dx का टर्म को हम लोग को LHS में ही रखना है, और बिना dy by dx के टर्म को हम लोग दूसरी तरफ लेके जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे बनेगा 2 log y अपॉन y, तो ये जो टर्म था इसमें dy by dx था, करेक्ट? तो यू कैन सी दिस टर्म इज केप्ट एज इट इज। ये जो पूरा टर्म है इसको अभी हम लोग यहाँ से इधर लेके आएंगे माइनस, ओके? सो दिस विल बिकम माइनस 2 log x अपॉन 2 log x अपॉन x। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और log y को यहाँ पे डिवाइड करना। सो व्हाट इज dy by dx इक्वल टू, दैट इज माइनस y log x upon x log y। So I think this was the doubt that was to be repeated। So idea वही था, dy by dx के टर्म को हम लोग एक तरफ LHS में रखते हैं और बिना dy by dx के टर्म को RHS लेके जाएंगे, कैंसिलेशन करेंगे और आंसर लेके आएंगे, ठीक है? So that was also quite easy। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू क्या लिखा है, t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, y इक्वल टू लिखा है t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, देन शो दैट y स्क्वायर इक्वल टू dy बाय y स्क्वायर प्लस dy बाय dx इक्वल टू c। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो x इक्वल टू क्या लिखा है, सो x इक्वल टू लिखा है t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, एंड y इक्वल टू लिखा है t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। अब सोच के देखो, हाउ विल यू एलिमिनेट द पैरामीटर t? कैसे इसका पैरामीटर एलिमिनेट हो सकता है? करेक्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन। सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस, ओके, अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होगा, t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 से। ऑफकोर्स ये जो है वो कट हो जाएगा, t प्लस 1। तो यहाँ पे जो बच गया है दैट इज x इंटू वाई
इज इक्वल टू y। अब थोड़ा सा समझने ट्राई करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे यही प्रूव करना, y स्क्वायर प्लस dy by dx इक्वल टू 0, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, y स्क्वायर प्लस dy by dx इक्वल टू 0। अभी सोच के देखो अच्छे से, मुझे y स्क्वायर लेके आना है। ऑफकोर्स हम लोग सिंपल सा u इंटू वी करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट बार बार सब्स्टिट्यूशन कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई मेक अ स्मॉल चेंज, मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 1 बाय y, ठीक है। तो आपको पता है 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, दैट वाज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, करेक्ट। तो ये 1 अपॉन y के डेरिवेटिव में माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर आ जाएगा, जो हमको सम में चाहिए था। तो अभी मैं इसका क्या करूंगा, ऑब्वियसली डेरिवेटिव करूंगा, लेकिन ओके इसका हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज समथिंग वेरी रेयर, हम लोग ने ये कॉम्पोजिट रूल के टाइम पे भी देखा था। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में भी ये टाइप का सम देखा था। तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा, और आप 1 बाय y का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, बट इट इज डन विद रिस्पेक्ट टू y। ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा जस्ट माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, और कोई टर्म इसके साथ नहीं। सो दिस इज dx अपॉन dy, ठीक है। ये किसका वैल्यू ढूंढा है हमने, dx अपॉन dy, लेकिन हमको सम में क्या चाहिए था, dy बाय dx चाहिए था, बराबर। तो यहाँ पे मैं dy बाय dx करता हूँ, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करना है, दैट इज बाय इन्वर्टेंट। तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप ये माइनस वाई स्क्वायर को एक तरफ लेके आओगे, you'll get y square plus dy by dx equal to 0. So this is the final answer, y square plus dy by dx equal to 0. तो आप देख सकते हो कि मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया करके हमको जो आंसर है बहुत ही क्विकली आ गया। अगर हमने कोई भी और तरीके से किया होता तो the sum would not have been like this simple, इतना छोटा आंसर नहीं आता। सेकेंड लास्ट स्टेप, यहाँ पे dx अपॉन dy हमने माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर लेके रखा, ठीक है। सो dx अपॉन dy इज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो ऑब्वियसली अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता था, उल्टा कर देते। तो ये dx अपॉन dy उल्टा हो गया, मतलब dy अपॉन dx हो गया। ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर उल्टा हो गया, मतलब माइनस वाई स्क्वायर हो गया। माइनस इधर आ जाएगा, सो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। So that is what is happening in this second last step. y स्क्वायर कैसे आया, देखो आप डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आता था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो सेम तरीके से अगर आपने डेरिवेटिव 1 बाय y का किया तो आपको आंसर माइनस 1 बाय y स्क्वायर आएगा। वही यहाँ पे किया, 1 बाय y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस 1 बाय y स्क्वायर, दैट इज बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, let us now go to the next question. तो ये I think third question था, right? So मैं fourth question कर रहा हूँ, but fifth question जो है आप लोग solve करना। So fourth question quite like थोड़ा सा बाकी से थोड़ा difficult, but
बहुत नहीं, दिस इज जस्ट यूजिंग इंडाइसेस। तो थोड़ा सा इंडाइसेस अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो ये क्वेश्चन कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। सो फोर्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा या t सॉरी y इक्वल टू a sin क्यूब t। सो ये जो है दिस इज द गिवन क्वेश्चन x इक्वल टू a cos क्यूब t y इक्वल टू a sin क्यूब t। तो भी इसका हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? So how to differentiate or how to find the derivative of this? Okay, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इसमें भी मैं cos और sin को एलिमिनेट करने ही ट्राई करूंगा। तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल ट्राई इज टू एलिमिनेट द वैल्यूज ऑफ cos एंड sin somehow। ऑब्वियसली cos है, sin है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा थोड़ी दिया है, sin क्यूब थीटा दिया है, cos क्यूब थीटा दिया है। तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं पहले लिखता हूं x अपॉन a इज cos क्यूब t, इसमें y अपॉन a इज sin क्यूब t। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। सो टेकिंग क्यूब रूट, ओके करेक्ट। सो टेकिंग क्यूब रूट, तो क्यूब रूट करने का फायदा क्या है? ऑब्वियसली इसको मैं क्यूब रूट ही लिख रहा हूं, बट दिस इज x अपॉन a रेज टू 1/3, ये cos t हो जाएगा, एंड y अपॉन a रेज टू 1/3, ये sin t हो जाएगा। सो वी नो cos t and sin t values, and now we can say since cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so cos square t plus sin square t is equal to 1, करेक्ट। तो cos square t पता है आपको, sin square t पता है, so cos square t plus sin square t is equal to 1। अब इसको आगे कैसे करेंगे? ठीक है, सो ऑब्वियसली cos और sin का वैल्यू पता है, उसको सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो cos t का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन a रेज टू 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। सो रेज टू 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3, एंड ये भी हो जाएगा y अपॉन a रेज टू 2/3 इक्वल टू क्या आएगा आपको 1। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस, करेक्ट। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहो तो ये a रेज टू 2/3 आप दोनों का कॉमन भी रख सकते हो, मतलब डेरिवेटिव करने से पहले इफ यू वांट यू कैन आल्सो कीप a एज योर एलसीएम। सो आप देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 अपॉन a रेज टू 2/3 है इक्वल टू 1। ऑफकोर्स ये a रेज टू 2/3 को आप इस तरफ लेके आओगे, करेक्ट, तो वो कांस्टेंट इस तरफ चला जाएगा। सो x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल टू a रेज टू 2/3। अभी डेरिवेटिव में कांस्टेंट चला जाएगा और हमको जो भी है y और x ही बचेगा, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। हाँ, तो अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो x रेज टू 2/3 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, तो ये हो जाएगा n इंटू x रेज टू n-1 प्लस, यहां पे भी ऐसे होगा n इंटू x रेज टू n-1 इंटू, लेकिन इसके साथ आपको dy by dx भी लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स द कांस्टेंट डेरिवेटिव इज 0, ओके। तो a रेज टू 2/3 कांस्टेंट था, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, एंड ये ऐसे टर्म्स बच गए। तो इसमें dy by dx है,
तो इसको मैं LHS में रखूंगा, जिसमें dy by dx नहीं है वो RHS में चला जाएगा. So this is 2/3. 2/3 minus 1 करना तो आपको -1/3 मिलेगा. एंड ये भी आपको आएगा 2/3 x raised to -1/3 ऐसे आएगा. So you can see what is to be cancelled. अच्छा ये माइनस, सो यहाँ पे 2/3 क्या हो जाएगा, कट. ये इधर डिवाइड हो जाएगा. सो यू विल गेट dy by dx is equal to minus x raised to -1/3 upon y raised to -1/3. अब ऑलमोस्ट अपना आंसर आ गया है. यू कैन सी ये जो वैल्यू है y raised to -1/3, डिनोमिनेटर से अगर मैं ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर पे तो माइनस का ये जो माइनस है उसका प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो माइनस का टर्म है वो प्लस हो जाना चाहिए. सेम वे ये जो माइनस है 1/3 जब ऊपर से नीचे आएगा x raised to -1/3, वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम प्लस. सो माई आंसर इज नाउ गोइंग टू बी लाइक dy by dx इक्वल टू माइनस y raised to 1/3 upon x raised to 1/3. So finally this is minus y by x the whole raised to 1/3. So ये आपका dy by dx. Is this clear for everyone? सबको आ रहा है आवाज वगैरह, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब वो जो लास्ट पार्ट है उसको एक बार समझने ट्राई करो प्रॉपरली क्या हुआ था. ओके एक बार गो थ्रू करो उसमें क्या हुआ था. यहाँ पे फिर से एक बार y raised to -1/3 ऊपर आ गया, इसके लिए प्लस हो गया. ये भी माइनस नीचे आ गया, इसके लिए x raised to +1/3 हो गया. दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में डाल दिया, पूरा raised to 1/3 करके. So that is what we have done in that part. Try to understand the steps and like I said कि आपको practice करना चाहिए so that we can like easily solve these questions later on. ठीक है, so अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Like I said ये तो आपको क्या करना चाहिए, x/2 को इस तरफ लिखना चाहिए, स्क्वायर रूट लेना है, y/3 को इस तरफ लिखना है, स्क्वायर रूट. तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ये sin स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना तो 1 हो जाएगा. फिर डेरिवेटिव लेना, रूट का डेरिवेटिव वगैरह आपका आंसर में है एंड यू विल गेट द आंसर क्वाइट इजीली. ठीक है, सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करना. सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. ओके, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो सिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी हैव x इक्वल टू log of 1 plus t square, y इक्वल टू t minus tan inverse of t. ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन, x इक्वल टू log of 1 plus t square and we have y equal to t minus tan inverse of t. अब यहाँ पे क्या है कि आई एम लाइक वी वोंट बी एबल टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ t. ठीक है, आप कितना भी ट्राई कर लो, इसका पैरामीटर्स हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. करेक्ट, क्यों? क्योंकि एक लॉग में है और एक tan इनवर्स में है. दिस आर नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड. सेक tan होता, साइन कॉस होता, तो एक बार ठीक है समझ में आता है कि वी आर यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी. बट लॉग और tan इनवर्स ये कोई ऐसा फंक्शंस नहीं है जो इजीली एलिमिनेट हो सकता है. सो इसको हमको कैसे करना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो बाय द नॉर्मल मेथड ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. तो एक का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t, फिर दूसरे का होगा, डिवाइड करेंगे और हम लोग वो आंसर लाने ट्राई करेंगे जो हमको चाहिए. वैसे आप मैं लिख देता हूँ हमको आंसर में क्या चाहिए. सो वी वांट dy by dx इज इक्वल टू,
root of e raised to x minus 1 upon 2. So this is what we have to prove. dy by dx का वैल्यू ये आना चाहिए हमको, ठीक है. So this is the answer that we want in the question. Root of e raised to x minus 1 by 2. तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग इसका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे. सो दिस इज dx अपॉन dt, करेक्ट. सो dx अपॉन dt log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर. सो log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट. तो इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे. तो dx अपॉन dt का वैल्यू आ रहा था 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, ऑब्वियसली दैट इज 2t. सो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव तो 0 था, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t. सो दिस इज, आई कैन से दिस इज द dx अपॉन dt टर्म दैट आई वांटेड. तो ये हो गया. अभी dy अपॉन dt करते हैं. सो नेक्स्ट जो है दैट इज y इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t. इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज dy अपॉन dt, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे. सो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो दिस इज dy अपॉन dt, ठीक है. सो प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, आपको आएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो दिस इज dy अपॉन dt टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अब dy by dx होंगे, ओके. सो दैट इज बाय द फॉर्मूला ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. तो ये हो जाएगा dy by dt upon you will get dx by dt. So what is dy by dt? It is t square upon 1 plus t square, और वो जो दूसरा वैल्यू था वो आपको आ रहा है 2t upon 1 plus t square. So obviously हम लोग यहाँ से 1 plus t square 1 plus t square को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. So 1 plus t square 1 plus t square कट हो गए. एक t को भी मैं कट कर देता हूँ. तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है मुझे, dy by dx is t by 2. लेकिन आप देख सकते हो हमारा आंसर तो वो नहीं, इट वॉज रूट ऑफ e raised to x minus 1 by 2. That is nothing like what we have got. So dy by dx का वैल्यू हमको आ रहा है t by 2. Does not solve our problem, correct? तो यहाँ पे आप देखो e raised to x दिख रहा है, देखो मुझे x का टर्म दिख रहा है. तो यहाँ पे मेरा एक हिंट है, आई हैव टू यूज दिस टर्म, x का जो टर्म है ना उसको यूज करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है. मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू, सिंस x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर. ऑफकोर्स यहाँ पे बेस में e था, e जब यहाँ पे x के साथ आएगा वो रेस टू में कर देगा उसको, e रेस टू x हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर. अब ये प्लस 1 को आप इस तरफ लेके आना, माइनस 1. सो e रेस टू x माइनस 1, दिस इज टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज t? दैट विल बी रूट ऑफ e रेस टू x माइनस 1. तो ये अपना t का वैल्यू है. तो यहाँ पे t के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, e रेस रूट ऑफ e रेस टू x माइनस 1 अपॉन, ऑफ कोर्स देयर इज 2 आल्सो. तब जो है आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ओह या आई फॉरगॉट, लेक्चर 8 बजे तक नहीं था ना, सॉरी. आई थॉट इट वाज अप टू 8 o'clock. आई फॉरगॉट कि 7:45 तक का लेक्चर, सॉरी फॉर दैट. सो आप जो है ये हम लोग यहाँ पे इतना भी स्टॉप करें. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था. ओके, सो ये t का वैल्यू आपको रिसब्स्टिट्यूट करना है, रूट ऑफ e रेज़्ड टू x माइनस 1, एंड
you will get the correct answer. Okay, so this is it for today from my side, everyone. थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, जस्ट फॉरगॉट, आई थॉट कि आपका एक्चुअली लेक्चर जो है 8 o'clock पे था, बट माय मिस्टेक. सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एवरीवन. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे.